Friends, welcome to Dr. Varsha Gaitonde's channel. This is a part 2 of capsules of GPB series. So, the topics covered as usual are scientists, genetics, cytogenetics, plant breeding, seed tech, biotech, economic botany, questions from a particular topic. In this, we are going to discuss about the Green Revolution continuation portion, then current affairs or GK in agriculture, then differences and a particular diagram. I'll explain you. So, first of all, let's see some of the scientists. In 1952, Martin and Sinje they gave chromatographic technique. In 1952, the same year, Waxman worked for the discovery of streptomycin, the first antibiotic effective against TB. Then in 1957, Todd studied the structure of nucleosides and nucleotides. In 1958, Beadle, Tatum and Letterberg worked with Neurospora genetics, that is Neurospora biochemical genetics and bacterial conjugation. In the same year 1958, Fred Sanger studied on protein chemistry. Our next topic is genetics. Under genetics, here first question is tetracycline blocks protein synthesis by. The function of tetracycline is it inhibits the binding to amino acyl tRNA to ribosomes, means during the initiation or before the initiation only tetracycline starts working on the translation process. Okay. The second question is the branch of genetics which deals with the control of hereditary disease is called as eugenics. Eugenics is always for the betterment of the genetic properties or the genetic principles of human beings. Third is branch of genetics which deals with the inheritance of polygenes is quantitative genetics. Branch of biometrical genetics which deals with the gene and genotypic frequency in a population is population genetics. Population genetics और quantitative genetics branch of biometrical genetics होते हैं. This you need to remember. Then the last question is function of Golgi complex. Golgi bodies का क्या function होता है? This acts as a vehicles or transporters or goods vehicles in our cells. तो इसका function क्या होता है? Packaging of the proteins, lipids and phospholipids का काम ये करता है. नेक्स्ट वी शैल डिस्कस ऑन साइटोजेनेटिक्स. साइटोजेनेटिक्स टर्म को कॉइन किया था सटन ने इन 1903 एंड ही इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज फादर ऑफ साइटोजेनेटिक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रक्चरल चेंजेस इन क्रोमोसोम कॉज अल्ट्रेशन इन. अगर क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में चेंज हुआ तो वो अल्ट्रेशन लाता है इन फिनोटाइप, फर्टिलिटी एज वेल एज कैरियोटाइप. नेक्स्ट इज डिलीशन लीड्स टू अल्ट्रेशन इन. डिलीशन एंड डुप्लीकेशन से हमेशा जीन नंबर में डिफरेंस आता है और इन्वर्शन एंड ट्रांसलोकेशन से क्या होता है? जीन सीक्वेंस में अल्ट्रेशन होता है. इन प्लांट ब्रीडिंग the first question is mentor pollen is used to overcome. mentor pollen normal pollens के साथ यूज़ करते हैं तो इसको जनरली स्टिग्मेटिक बैरियर को हटाने के लिए यूज़ करते हैं इन केस ऑफ डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन. Next question is photomorphogenic response are most evident in germinating seedlings. The most effective wavelength in this phenomena is 680 nm. Third question caffeine is used as a stimulant aid फाउंड इन द सीड्स ऑफ. मतलब मैक्सिमम कैफीन कंटेंट मिलता है आपको कॉफिया रबस्टा जब अरेबिका एंड रबस्टा में कंपेयर करेंगे. और एक प्लांट है कोरला निटिडा, इसमें भी कैफीन अधिक मात्रा में पाया जाता है. जैसे आप जानते हैं जो भी स्टिमुलेंट ड्रिंक्स माना जाता है जैसे आपका टी होगा, कॉफ़ी होगा, इन सारे चीज़ों में कैफीन पाया जाता है. अलॉन्ग विद दिस कोकोआ में भी कैफीन होता है. Genetic improvement of crop plants through manipulation of chromosome number is referred as polyploidy breeding. Most commonly used commercial source of male sterility. मतलब अगर नेचुरली हम यूज़ करना चाहते हैं तो वो होगा spontaneous mutation. इसको यूज़ करके ही कमर्शियल मेल स्टेरिलिटी को प्रमोट किया जाता है. अंडर सीड टेक्नोलॉजी सेक्शन हम क्या क्या डिस्कस करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसीज इन इंडिया 24 है आज, मतलब अभी फिलहाल. देन सेकेंड क्वेश्चन इज टोटल नंबर ऑफ स्टेट सीड कॉर्पोरेशंस SSCs. रिमेंबर SSCAs आर डिफरेंट एंड SSCs आर डिफरेंट. SSC कितने हैं? 15 हैं.
Pre-chilling is generally used to overcome chemical dormancy in seeds. The important range of pre-chilling is 0 to 8 डिग्री. नॉर्मली ये होता है 5 डिग्री सेल्सियस में प्री-चिलिंग, तो एक रेंज अगर पूछा जाए तो 0 to 8 डिग्री है. नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिनेशन इन कॉलीफ्लावर इज डन बाय हनी बीज. ठीक है, क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स में अधिकतर जैसे भी आपने देखा होगा सरसों के खेत में या कहीं इसके ब्राइट कलर के फूल होते हैं, मीन्स द येलो फ्लावर्स आर द पॉपुलर अट्रैक्टेंट्स ऑफ द हनी बीज. सो यहाँ पे हनी बीज से ज़्यादा पॉलिनेशन दिखता है. हार्वेस्टेबल मैच्योरिटी स्टेज ऑफ भिंडी. भिंडी में हार्वेस्टेबल स्टेज क्या होता है? हेयर लाइन क्रैक फॉर्मेशन. देन एग्जाम्पल ऑफ डायोशियस फ्रूट क्रॉप. डायोशियस फ्रूट क्रॉप क्या होते हैं? जिसमें मेल एंड फीमेल एंटायरली डिफरेंट प्लांट्स में पाया जाता है. तो इसका एग्जाम्पल है जैसे कि डेट पाम हो सकता है, पपाया हो सकता है, नटमेग हो सकता है. नेक्स्ट हम बायोटेक्नोलॉजी सेक्शन में 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन है, टर्म मोलिकुलर बायोलॉजी वॉज फर्स्ट कॉइंड बाय. मोलिकुलर बायोलॉजी को फर्स्ट कॉइन किया था अष्टबरी इन 1950. सेकेंड क्वेश्चन, केमिकली प्रिफर्ड टू मेक आर्टिफिशियल सीड इज सोडियम अल्जिनेट. एंजाइम यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम स्टार्च इज अल्फा अमाइलेज. फोर्थ क्वेश्चन, मेथड यूज्ड फॉर द बिल्डिंग ऑफ फाइलोजेनेटिक ट्री. जब फाइलोजेनेटिक ट्री कहाँ पे बनाते हैं? जब भी हम डाइवर्सिटी स्टडीज़ को में यूज़ करते हैं या वेरिएशन स्टडी करने के लिए जब हम यूज़ करते हैं, तो इसमें 3 मेथड पॉपुलर है: डिस्टेंट मैट्रिक्स मेथड, मैक्सिमम पार्सिमोनी मेथड एंड मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग है. मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मैच कर लिया है, ठीक है, टू अवॉइड द कन्फ्यूजन. प्रोब होता है फॉर जीन आइसोलेशन, ट्रांसजीन होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज़ कर सकते हैं, एम्ब्रियो रेस्क्यू मेथड डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन में यूज़ करते हैं, एंड सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन फॉर सेल फ्यूजन. इकोनॉमिक बॉटनी में हम आज डिस्कस करेंगे स्यूडो सीरियल्स एंड सम ऑफ द फैक्ट्स अबाउट राइस. ठीक है, तो स्यूडो सीरियल क्या होता है? दे आर सर्टेन botanically unrelated plants whose seeds are also used in a similar manner as that of cereals. मतलब सीरियल के तरह ही यूज़ किया जाता है लेकिन सीरियल्स नहीं है. द प्लांट्स विच आर रिलेटेड टू द फैमिली बट नॉट एग्जैक्टली द सीरियल्स. एग्जाम्पल है बकव्हीट. बकव्हीट होता है फैगोपायरम एस्कुलेंटम एंड ग्रेन अमरैंथस. ये दोनों बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी के साथ एग्जिस्ट है, तो इनका न्यूट्रिशनल वैल्यू भी काफ़ी हाई है एज कंपेयरिंग टू आवर सीरियल्स, एंड दीज आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज द मोस्ट हार्डी क्रॉप्स एज कंपेयरिंग टू सीरियल्स और मिलेट्स. नेक्स्ट, द एग्रोनॉमिक क्लासिफिकेशन ऑफ कल्टिवेटेड राइस. कल्टिवेटेड राइस क्या होता है? ओरेजा सटैवा. ठीक है, तो उसी में इंडिका, जपोनिका, जवानिका, आज हम डिफरेंसेस में उसी को देखेंगे. तो अगर हम राइस की बात करेंगे तो लोलैंड, अपलैंड एंड फ्लोटिंग राइस होता है. लोलैंड राइस इज ग्रोन इन, इट इज कॉल्ड ए स्वैम्प राइस, ग्रोन इरिगेटेड इन फ्लडेड लैंड. अपलैंड राइस इन हिल राइस और ड्राईलैंड पैडी ग्राउंड एज रेन फेड क्रॉप. लोलैंड राइस में हमेशा टॉल वेराइटीज़ या हाइब्रिड्स को प्रिफर किया जाता है और अपलैंड राइस में काफ़ी शॉर्ट या मीडियम हाइटेड प्लांट्स को प्रिफर किया जाता है. थर्ड काइंड इज फ्लोटिंग राइस और डीप वाटर पैडी. तो इसमें सबमर्जिंग टॉलरेंस राइस वेराइटीज़ को प्रिफर करते हैं, ग्राउंड इन एरियाज ऑफ डीप फ्लडिंग. तो इनका रूट काफ़ी ढीला होता है और लॉन्ग होता है, तो न्यूट्रिएंट्स तो ये ले लेते हैं बट दे जस्ट इंक्रीज देयर स्टेम लेंथ वेरी फास्टली. मतलब टिलरिंग जो हैबिट होता है उसका बहुत ही फास्ट होता है एंड हाइट भी बहुत ही ज़्यादा होता है. देन क्वालिटी कैरेक्टर्स देखते हैं राइस में. साइज, द क्लासिफिकेशन इज टू डिस्टिंग्विश ट्रेड ग्रेड्स बेस्ड ऑन द FAO रिकमेंडेशन. एक्स्ट्रा लॉन्ग होगा राइस ओवर 7 mm. तो बेसिकली बासमती काइंड ऑफ जो वेराइटीज़ होते हैं वो अगर एक्स्ट्रा लेंथ फेच करते हैं तो उनको मार्केट में ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है. जैसे आप हैदराबादी बिरयानी के बारे में जानते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा लॉन्ग राइस प्रेफर किया जाता है. देन लॉन्ग राइस इज़ 6 to 7 mm, मीडियम इज़ 5 to 5.9 mm एंड शॉर्ट इज़ लेस देन 5 mm. शॉर्ट राइस भी कई जगह में प्रेफर किया जाता है बट फॉर स्पेशल पर्पस एक्स्ट्रा लॉन्ग टाइप प्रेफर करते हैं. तो पर्टिकुलर टॉपिक पे जब हम डिस्कस करते हैं, आज हम ग्रीन रेवोल्यूशन के इम्पैक्ट के बारे में असेस करेंगे.
तो ग्रीन रेवोल्यूशन के पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी थे, नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी थे। जितने पॉजिटिव इम्पैक्ट्स थे उससे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट्स है, लेकिन उस समय के लिए मतलब फॉर टाइम बीइंग ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत ही अच्छा था, बिकॉज इंडिया वाज डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज़ फॉर फूड इम्पोर्ट एंड ऑल। तो काफ़ी महंगाई बढ़ रही थी एंड द कंडीशंस वर नॉट गुड, पीपल वर सफरिंग विथ फैमाइंस एंड दे वर डेफिशिएंट इन मैनी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। लेकिन जब हम ग्रीन रेवोल्यूशन से सेल्फ सफिशिएंट हो गए तो कंट्री को एक इकोनॉमिक वे में बढ़ते हुए इसमें नज़र आया। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट है इंक्रीज्ड प्रोडक्शन और यील्ड, improved economic situation, stress control and mechanization, better use of land by implying 2 to 3 crop pattern, मतलब multiple crops को यूज़ किया गया, फिर बेटर साइंटिफिक मेथड्स यूज़ किया गया, न्यू सीड डेवलप्ड फॉर इम्प्रूव्ड यील्ड, मतलब न्यू वैरायटीज़ को प्रीफर किया गया, फिर बहुत सारे अच्छे वैरायटीज़ को इरी से और सिमिट से इंपोर्ट किया गया एंड दे वर यूज्ड इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो इंडिया पाकिस्तान में मेजरली ग्रीन रेवोल्यूशन को एक ही टाइम में इम्पोज किया गया था। देन गुड अर्निंग्स भी आ गए। नेगेटिव इम्पैक्ट्स है डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। जैसे आप जानते हैं जो हाई यील्डिंग वेराइटीज़ थे देवर इनपुट डिमांडिंग, मतलब ज़्यादा पेस्टिसाइड या ज़्यादा फर्टिलाइज़र उनके लिए यूज़ करना था इन ऑर्डर टू फेच ए हायर इनकम और टू गेट लाइक बम्पर यील्ड। तो उसके लिए इनपुट भी वैसे ही देना था। तो कंटिन्यूअस स्टैग्नेशन ऑफ वाटर इन पैडी से आपके एनवायरनमेंट पे भी बहुत ही इम्पैक्ट पड़ा। उसी के साथ साथ में लैंड डिग्रेडेशन भी हो गया ड्यू टू ओवर यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल्स। देन इंक्रीज्ड वीड पेस्ट डाइवर्सिटी, क्योंकि नाइट्रोजन जब ज़्यादा यूज़ किया यूरिया के फॉर्म में तो वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा होता था, तो उससे पेस्ट अट्रैक्ट भी होता था। फिर उसको कंट्रोल करने के लिए पेस्टिसाइड यूज़ किया तो पेस्ट के डाइवर्सिटी बढ़ गए, तो डिफरेंट न्यू डिसीजेस एंटर होते गए। देन रेड्यूस्ड क्रॉप डाइवर्सिटी, मोनोक्रॉपिंग प्रमोट होते रहा। जैसे कि हाई यील्डिंग वेराइटीज़ को इंट्रोड्यूस किया तो वो ही 4-5 लीडिंग वेराइटी थे विच वर पॉपुलर इन थ्रू आउट द कंट्री। तो इससे क्या हुआ, डाइवर्सिटी घटने लगा। केमिकल्स इन वाटर हैंस डिटेरियोरेशन इन ह्यूमन हेल्थ कंडीशन। आप जानते होंगे कैंसर ट्रेन के बारे में, जो पंजाब से राजस्थान जाता है, दे ऑल गो फॉर द ट्रीटमेंट फॉर कैंसर। तो इससे क्या हुआ, जब वाटर में हार्मफुल केमिकल्स एंटर होने लगे तो उससे ह्यूमन बीइंग में कैंसर या और भी बहुत सारे भयंकर मारणांतिक जो भी डिसीजेस है वो बढ़ते गए। सो इन जनरल नॉलेज इन एग्रीकल्चर हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट प्रमोट्स यूज़ ऑफ बायो फर्टिलाइज़र्स। जैसे मैंने ग्रीन रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट बताया था, तो आजकल क्या हो रहा है, ऑर्गेनिक खेती के बारे में बहुत सारा प्रमोशन हो रहा है। इवन गवर्नमेंट इज़ सपोर्टिंग और कमिंग अप विथ मैनी ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्कीम्स इन ऑर्डर टू प्रमोट द ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ बीन एनकरेजिंग यूज़ ऑफ बायो फर्टिलाइज़र्स इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र्स थ्रू स्टेट गवर्नमेंट्स इंक्लूडिंग इन डिस्ट्रिक्ट गोपालगंज ऑफ बिहार अंडर वेरियस स्कीम्स। मतलब गोपालगंज में पहले ऑर्गेनिक खेती के बारे में ज़्यादा पॉपुलैरिटी मतलब प्रचार किया था, तो बहुत सारे स्कीम्स है जैसे कि परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY, देन मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जिसको MOUCD NER से जानते हैं, नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड एंड ऑयल पाम, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, then ICR under network project on soil biodiversity biofertilizer has developed improved and efficient strains of biofertilizer specific to different crops and soil types। डिफरेंस में देखेंगे 3 राइस स्ट्रेन्स के बारे में, दैट इज इंडिका, जपोनिका एंड जवानिका। तो जब सटाइवा के सब क्लासेस में देखते हैं तो उसमें इंडिका, जपोनिका, जवानिका आता है। इंडिका टाइप इसका क्लाइमेटिक जोन है ट्रॉपिकल, जपोनिका टेम्परेट में दिखता है एंड जवानिका इक्वेटोरियल प्लेन में आपको मिलेगा, द इक्वेटोरियल रीजन में, ठीक है। देन फोटो पीरियड इंडिका के लिए बहुत ही सेंसिटिव होता है फोटो पीरियड से, जवानिका क्या होता है नॉन सेंसिटिव एंड जपोनिका भी नॉन सेंसिटिव होता है। इंडिका का ड्यूरेशन लॉन्ग होता है, जपोनिका का शॉर्ट एंड जवानिका का वेरी लॉन्ग। रिस्पॉन्स टू मैच्योरिंग
मैन्योरिंग तो इंडिका में लो होगा, जपोनिका में हाई एंड जवोनिका में लो। मतलब मैन्योर जब हम देते हैं तो जपोनिका अच्छा रिस्पांस देता है। लॉर्जिंग ससेप्टिबल है इंडिका और लॉर्जिंग नहीं दिखेगा जपोनिका एंड जवोनिका में बिकॉज ऑफ इट्स शॉर्ट स्टेचर। ओके, देन सीड डॉर्मेंसी जपोनिका एंड जवोनिका में नहीं होता है, राइस इंडिका में कभी कभी दिखता है। ओके, ग्रेन शेप लॉन्ग एंड नैरो होगा इंडिका, शॉर्ट एंड थिक होगा जपोनिका एंड कोर्स एंड ब्रॉड होगा जवोनिका। प्लांट कलर लाइट ग्रीन होगा इंडिका का, डार्क ग्रीन होगा जपोनिका का एंड लाइट ग्रीन होगा जवोनिका का। प्लांट हाइट टॉल होता है इसीलिए लॉर्जिंग होता है इंडिका में एंड शॉर्ट होता है जपोनिका में, लॉन्ग होता जवोनिका में। टिलर नंबर मॉडरेट होता है इंडिका में, मैनी टिलर्स आर फाउंड इन जपोनिका एंड फ्यू इन जवोनिका। शेडिंग ऑफ ग्रेन्स ससेप्टिबल है इंडिका और रेजिस्टेंस है जपोनिका एंड जवोनिका में। फ्लैगलिप लॉन्ग नैरो एंड ड्रूपिंग होता है इंडिका में, वही शॉर्ट ब्रॉड एंड डायरेक्ट होगा जपोनिका में एंड लॉन्ग वाइड एंड सेमी ड्रूपिंग होगा जवोनिका में। एंडोस्पर्म ट्रांसलूसेंट होता है इंडिका में एंड चॉकी होगा जपोनिका में। देन ब्रेकिंग ड्यूरिंग मिलिंग हाई प्रॉब्लम है इंडिका में, लेकिन ये प्रॉब्लम कम है जपोनिका एंड जवोनिका में क्योंकि इसका ग्रेन लेंथ शॉर्ट होता है। यील्ड पोटेंशियल इंडिका का मीडियम है, जपोनिका का हाई है एंड जवोनिका का लो है। मार्केट प्राइस इंडिका का हाई है, जपोनिका का लो है एंड जवोनिका का मीडियम है। जब भी कोई स्टिक से खाने वाला डिश प्रिफर करते हैं तो वो जपोनिका टाइप होता है एंड जब हम इंडियंस जिसमें जो नॉन स्टिकी काइंड होता है तो वो इंडिका होता है। यही आपको डिफरेंस याद रखना है। यहाँ पे मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ, किस काइंड में अमाइलोस कंटेंट ज़्यादा होता है। अमाइलोस कंटेंट ज़्यादा होना हम प्रिफ़र करते हैं इंडियंस या कम होना प्रिफ़र करते हैं, जस्ट पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट इज द डायग्राम मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, दैट इज सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस एंड ऑर्गेनोजेनेसिस। सोमैटिक एम्ब्रियो क्या होता है, ये टिश्यू कल्चर में एक फॉर्म होता है जिससे सोमैटिक सेल्स को यूज़ करके एम्ब्रियो फॉर्मेशन किया जाता है। तो पहले हम क्या करते हैं, एक्सप्लांट लेंगे जिसमें लीव्स, रूट्स, स्टेम्स, हाइपोकोटाइल ये सब लेते हैं, तो उससे कैलस इंडक्शन करते हैं। कैलस क्या होता है, ये अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स होता है, उसको लेके फिर हम क्या करेंगे तो उसको कल्चर करेंगे तो ग्लोबुलर एम्ब्रियो आएगा, फिर उससे हार्ट शेप आएगा, फिर टॉर्पेडो शेप। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं डिफरेंट शेप्स ऑफ द एम्ब्रियो, जैसे कि यहाँ पे आपको हार्ट शेप मिलेगा, देन टॉर्पेडो शेप मिलेगा, देन कॉटिलेडनरी शेप, देन शूट फॉर्मेशन, देन रूट इंडक्शन। शूट एंड रूट इंडक्शन के लिए डिफरेंट हार्मोन्स देना पड़ता है एंड रूट जाने के लिए उसको डार्क कंडीशन में रखना पड़ता है। दिस इज ऑल अबाउट सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। अगर हम ऑर्गेनोजेनेसिस की बात करते हैं तो वहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ लेंगे या एम्ब्रियोजेनिक एक्सेस शूट टिप्स लेंगे, तो वहाँ से डायरेक्ट सिंगल शूट और मल्टीपल शूट इंडक्शन करेंगे टिश्यू कल्चर मीडिया यूज़ करके, फिर सब कल्चर करेंगे, इससे हमें ऑर्गेनोजेनेसिस हमारा सक्सेस हो पाएगा। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गिव योर फीडबैक कंटिन्यूसली। I hope you liked this video. Please do not forget to keep on sharing, subscribing and commenting. Thank you once again.